خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ میں تھوڑی تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں۔ خداوند کا بڑا شکر ہے آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے جو اس نے مجھے اور آپ کو بخشا کہ ہم ایک دفعہ پھر اس کے قدموں میں آئیں، اس کے چرنوں میں بیٹھ کر اس کے کلام کی جو باتیں ہیں، اس کا جو کلام ہے، اس کو کھولیں اور مل کر سیکھیں۔ میرا نام پاسٹر جارج وحید ہے اور میں لیسٹرن منسٹریز انٹرنیشنل اور نیو کوننٹ چرچ ہیوسٹن ٹیکسس کے پلیٹ فارم سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس وقت پاکستان میں صبح کے 8 بجے کا وقت ہے اور اگست کی 21 تاریخ۔ اس وقت امریکہ میں سینٹرل ٹائم زون جو ہے رات کے 10 بجے کا ہے اور ہفتے کا دن ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان دنوں ہم کلام مقدس میں سے رومیوں کی کلیسیا کے نام جو خط پالوس رسول نے لکھا اس کی سٹڈی کر رہے ہیں۔ ہم کلام مقدس میں سے مل کر سیکھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ابھی تک ہم نے 2 میسج جو ہیں وہ جو پہلا چیپٹر ہے اس میں سے سنے اور ہم نے مل کر دیکھا کہ کس طرح پالوس جو ہے وہ جو غیر اقوام تھی ان کو ایڈریس کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہودیوں کو بھی۔ لیکن آج ہم ذرا اور زیادہ بریک ڈاؤن کر کے مل کر سیکھیں گے کہ کس طرح پالوس رسول اس دوسرے باب میں ڈائریکٹ یہودیوں کو، مجھے اور آپ کو، آج کی جو کلیسیا ہے ان کو ایڈریس کر رہا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے زندہ کلام کی طرف بڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے فہم، لیاقت، مدد جو ہے وہ مانگیں۔ آئے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں دیا کہ ہم خداوند تیرے قدموں میں آ کر تیرے ہی منہ کی باتیں جو ہیں خداوند تیرے بڑے پاک روح کے فضل سے، پاک روح کی ہدایت سے ہم خداوند تیرے کلام کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس پر غور کریں، اس کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو خداوند تیرے کلام کے مطابق جو ہے بسر کریں۔ اے باپ، میں نہیں تو بول، جو باتیں کہی جائیں وہ تیرے کلام کے مطابق ہوں۔ اے خداوند، اس وقت جتنے بھی تیرے لوگ دنیا کے مختلف ممالک میں ہزاروں میل دور بیٹھے خداوندہ اپنے اپنے ٹائم زون میں تیرے کلام کو سن رہے ہیں، تو ان کو بڑی برکت دینا۔ اور اے خداوند، آج کے کلام کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں بدلیں۔ کاش خداوند آج بہت زیادہ کنوکشن جو ہے وہ ہو۔ اے خداوند، تو بول، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ آمین۔ خداوند کا بڑا شکر ہے کہ وہ اپنے بڑے فضل سے ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو کھولیں اور مل کر سیکھیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جب ہم نے رومیوں کے خط کے پہلے باب میں سے مل کر سیکھا تو پالوس جو ہے وہ ہمیں ایک اداس کن خبر کے ساتھ چھوڑتا ہے۔ پہلے باب میں وہ جو بغیر بائبل کے ہیں، یعنی کہ جینٹائلز، جو جن کے پاس شریعت نہیں، ان سے بات کرتا ہے اور انہیں مختلف طرح سے کلام مقدس میں سے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ خدا کے غضب میں ہیں، کیونکہ وہ سچائی کو دبائے ہوئے ہیں۔ خدا ظاہر ہے، وہ کائنات میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے اپنی صفات جو انسان کے اندر رکھی ہیں، ان سے وہ ان کو جو شریعت کے ماتحت نہیں، جن کے پاس کلام مقدس نہیں، ان پر اپنے آپ کو عیاں کرتا ہے۔ اور پالوس انہیں بتانا چاہتا ہے کہ اس کے باوجود کہ ان کے پاس شریعت نہیں،
उनके पास कोई उज़र नहीं कि वो उसकी हकीकत का इनकार करें। वो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते और उन्होंने वो काम किए ये जानते हुए भी कि वो गलत है। लेकिन अब वो इस दूसरे बाब में खुदा के गजब को जारी रखते हुए अब उनसे मुखातिब है जो बाइबल रखते हैं, मतलब कहने का कि जो शरीयत रखते हैं, जिनके पास शरीयत है। पहले बाब में वो उनकी मजम्मत करता है जो गुनाह करते हैं, अब वो उनकी मजम्मत कर रहा है जो गुनाह करते हैं लेकिन दूसरों की मजम्मत करते हैं। खुद तो गुनाह करते हैं लेकिन दूसरों की मजम्मत करते हैं। इस तरह अब ये दो ग्रुप हो गए और इन दोनों ग्रुप्स का खुदा के साथ मसला है। और अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों ग्रुप ही आपस में रिश्तेदार हैं तो गलत ना होगा, क्योंकि गौर से सुने, पहला जो ग्रुप है वो कानून या कोई असूल नहीं रखता। कानून से मतलब लॉ है, यहां शरीयत। गौर से सुने दोबारा। और आज की जो स्टडी है इसके लिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कलाम मुकद्दस को खोल के रखें, नोटबुक रखें और हम बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता सारी जो आज की आयात है, अभी मैं हवाला भी पढ़ूंगा, उन पर गौर करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ये सेटिंग जो है उसको पहले बयान कर दूं, ताकि हमें जब हम आगे बढ़ते हैं कलाम में, डाइव इन करते हैं, तो समझने में और आसानी होगी। दोबारा अर्ज करता हूं, वो ग्रुप जिनके पास शरीयत नहीं है, उनके पास कोई कानून नहीं है, कोई असूल नहीं कि उसे माना जाए। नंबर 2, ये वो दूसरा ग्रुप है कदामत पसंद मुनाफिक। ये वो मुनाफिक हैं जिनके पास शरीयत है, कानून भी है, मतलब लॉ है, बहुत सारे असूल हैं, प्रिंसिपल हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी नाफरमानी भी है। ये दोनों ग्रुप में फर्क है। दूसरे बाब में हमें पालूस इस तरह गुफ्तगू करता हुआ मिलेगा इस दूसरे चैप्टर में कि जैसे पालूस चेयर पर या कुर्सी पर बैठा है, दरमियान में टेबल है और इस तरफ मैं जॉर्ज वहीद बैठा हूं, आप हैं। आपने यह तसव्वुर करना है कि पालूस डायरेक्ट मुझसे बात कर रहा है। मेज है, इस तरफ आप बैठे हुए हैं, इस तरफ पालूस बैठा हुआ है और सवालात और जवाबात हो रहे हैं। यह है सेटिंग। जब तक हम अपने आप को इस तरह पिक्चर नहीं करते कि हम पालूस के सामने बैठे हैं और वह हमसे गुफ्तगू कर रहा है, इसको समझने में मुश्किल होगी। लेकिन अगर हम इसको इस तरह पिक्चर में कर लें तो हमें बहुत ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि हमें फिर ये साफ पता चलेगा कि पालूस मुझसे बात कर रहा है। क्योंकि यहां जरा आज का जो सबक है, इसका ताल्लुक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है, इसका ताल्लुक जो हमारे एक्शन हैं उससे है। तो अगर आप इस तरह अपने आप को पिक्चर करेंगे या इस तरह तसव्वुर करें कि आप पालूस के सामने बैठे हैं, तो यकीनन और ज्यादा आसानी होगी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि कलाम मुकद्दस में हम रोमियो की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का खत और उसका जो दूसरा बाप है उसको निकालें। मैं सिर्फ जो 5 आयात हैं वो आपके लिए पढ़ूंगा, लेकिन हम बाप की जो 16वीं आयत है उस तक आज स्टडी करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, पस ऐ इल्जाम लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्जाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरम ठहराता है। इसलिए कि तू जो इल्जाम लगाता है खुद वही काम करता है, और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। और
ऐ इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है और खुद वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कुमार है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मैंने रोमियो की कलीसिया के नाम जो पालूस का खत है उसके दूसरे बाब की पहली 5 आयत की तिलावत की है, लेकिन हम बाब की जो 16वीं आयत है वहां तक आज की जो स्टडी है करेंगे और हम बारी बारी जो आयत में जरूरी पॉइंट्स हैं उन पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहली आयत से 5वीं तक हम मसलसल इसको देखेंगे, उसके बाद 6ठी आयत से 11वीं आयत तक और उसके बाद 12वीं से 16वीं आयत तक, क्योंकि यही हमारे पास आज का वक्त होगा कि हम इसको कवर कर सकें। अब आए हम जरा कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं और इसमें डाइव करते हैं। आपने गौर किया कि यहां पर लिखा है कलाम मुकद्दस में पहली आयत कि पस इल्जाम लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं। अब यहां पर जो उज़र की ट्रांसलेशन उर्दू में की गई है या इल्जाम की, वो इंग्लिश में वो इसको हम कहते हैं किसी को जज करना। उर्दू में हम कह सकते हैं किसी के बारे में फैसला देना, राय देना, मजम्मत करना। इसके ब्रॉडर मीनिंग्स हैं, मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं जज करना, और मैं एन मुमकिन है ज्यादातर लफ्ज जज जो है उसे इस्तेमाल करूं, लेकिन मैं पहले बताता हूं कि इसका मतलब यही है किसी पर इल्जाम लगाना, किसी को मुजरम ठहराना, मजम्मत करना किसी के किसी एक्शन की या किसी और चीज की, तो इसको कहते हैं जज करना। और आजकल आपने अक्सर ये फिक्रा जो है अपने इर्द गिर्द सुना होगा कि ओ वी शुड नॉट जज, हमें दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। और जब इसको मैं पढ़ रहा था तो ज्यादातर जो इसकी इंटरप्रिटेशन जो लोग करते हैं या इसकी तशरीह वो कुछ इसी तरह है, लेकिन अगर आप इसको 2-3 दफा गौर से पढ़ें तो जो कलाम मुकद्दस है यहां कुछ और कह रहा है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में हमारे पास ऐसे रेफरेंस हवाले हैं, बल्कि खुदावन यीशु मसीह के लबे मुबारक से निकलने वाले जो बातें हैं वो भी इसकी तायद करती हैं कि यहां जो कहा गया है, और खुसूसन जो फॉल्स टीचर हैं जो गलत तालीम देते हैं वो आपको इसी तरह इसकी इंटरप्रिटेशन के कि ओ किसी को जज ना करें, किसी के खिलाफ कोई बात ना करें। खिलाफ से मेरी मुराद है कि उनकी मजम्मत ना करें। गौर से सुने, अगर आप इसको दोबारा पढ़ें तो यहां पर लिखा हुआ है कि पस ऐ इल्जाम लगाने वाले, जो जज कर रहा है उसके बारे में लिखा है तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं। किस बात का? जज करने का। लेकिन दरअसल यहां पर कहा गया है कि जज कर, वी शुड जज, लेकिन एक स्टैंडर्ड है, एक म्यार है, उसकी कंडीशन है। गौर से सुने, हमें जज करने की कलाम मुकद्दस ने इजाजत दी है, हमें दूसरों को जज करना चाहिए, लेकिन उसके लिए कलाम ही हमें कुछ गाइडलाइंस देता है। और इसकी वजह यह है कि जब तक हम दूसरों के रवैये और दूसरों के जो एक्शंस हैं उन पर गौर नहीं करते तो हमें किस तरह पता चलेगा कि सही और गलत क्या है। क्योंकि कलाम मुकद्दस ये कहता है कि हक और झूठ, सही और गलत को उसी तरह बयान किया जाए जिस तरह है। अगर सही है तो उसे सही कहा जाए, और अगर गलत है तो उसे गलत कहा जाए। और अगर आप किसी समझते हैं कि कोई गलत है तो आपने उसे जज किया है, आपने उनके उस फेल की मजम्मत की है, तो इसको कहते हैं जज करना। तो अगर आप किसी को जो गलत
गलती पर है या गलत काम कर रहा है, उसको समझाएंगे नहीं, उसे बताएंगे नहीं, तो किस तरह वो अपनी इस्लाह करेगा? लिहाजा जज करने की इजाजत है। और अभी मैं आपको कलाम मुकद्दस में से चंद आयात जो है वो भी देता हूं। आपको दोबारा जरा इस आयत को पढ़ना होगा, मैं फिर रिपीट करता हूं। बस ए इल्जाम लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्जाम लगाता है उसी का तो अपने आप को मुजरम ठहराता है। अब यहां पर कलाम जो है वो एक गाइडलाइन दे रहा है हमें जो अखलाकी मुहासबा है किसी का करना, उसके बारे में बताया गया है कि पहले हम अपना मुहासबा करें, पहले अपने आप को जज करें, फिर ही हम दूसरे को जज कर सकते हैं। किसी पर इल्जाम लगाने से पहले अपने आप को अच्छी तरह चेक कर लें। हम आंखें बंद कर किसी को जज नहीं कर सकते। आपने गौर किया मैं क्या कह रहा हूं? जज करने से मना नहीं किया गया, किसी की गलती को उसको अय्यां करने से मना नहीं किया गया। वी शुड जज, बाइबल परमिट्स अस, वी शुड जज। गौर से सुने, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 7वें बाब की 13वीं और तीसरी, चौथी और 5वीं आयत में देखें क्या लिखा हुआ है। मत्ती की इंजील के 7वें बाब में यूं लिखा हुआ है, गौर से सुने, और ये जरूरी है कि आप इन आयत को मेरे साथ देखें। लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आंख में शतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में तिनका निकाल दूं? ऐ रियाकार, 5वीं आयत पर गौर करना आपने। ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। आपने गौर किया यहां पर खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा? यह नहीं कहा कि पहले अपनी आंख के शतीर को निकाल और भाई को छोड़ दे, वो खुद ही कर लेगा। नहीं, लिखा है कि फिर तू अच्छी तरह देखकर उसकी आंख में से जो तिनका निकालेगा। मतलब कहने का यह है कि हमें पहले हमारा जो शतीर है, जो कमजोरी और वीकनेस है, हमारे अंदर जो कमजोरी है, पहले उसको दुरुस्त करें, फिर अपने भाई की मदद करें। हम अपने भाई को जज नहीं कर सकते, उस पर किसी भी उसके फेल का इल्जाम ना लगाएं, बल्कि देखें कि कहीं मैंने वो ही फेल तो नहीं किया। जज करने की इजाजत है, आपने गौर किया मैंने कहा जज करने की इजाजत है, लेकिन शर्त ये कलाम में लिखी है कि पहले अपना मुहासबा करें। लिहाजा जो ये कहते हैं वी डू नॉट जज अदर्स, वी शुड नॉट जज अदर्स, हमें दूसरों के बारे में किसी भी तरह की राय नहीं करनी चाहिए, मजम्मत, वो गलती पर है, वो कलाम की सही इंटरप्रिटेशन तशरीह जो है वो नहीं दे रहे। यहां पर हमें कलाम जो है इस बात की इजाजत देता है। और फिर इसके अलावा तो मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि हम पहले अपनी इस्लाह करें, पहले अपनी इस्लाह करें, क्योंकि यूहन्ना के इंजील के 7वें बाब की 24वीं आयत में लिखा है, जाहिर के मुआफिक फैसला ना करो, बल्कि इंसाफ से फैसला करो। अब यहां पर जज करने की इजाजत है, मजम्मत करने की, फैसला देने की इजाजत है, लेकिन हम जाहिरी जो नजर आ रहा है उसको देखकर जज ना करें, बल्कि गौर करें और जो सही फैसला है वो दें। फैसला करने से मना नहीं किया गया। क्या हम गलत तालीम देने वाले को जज नहीं करते? आपके चर्च में, आपके घर में, आपके स्टडी ग्रुप में कोई आकर फॉल्स टीचिंग जो है प्रीच करता है, तो क्या आप उसको जज नहीं करेंगे? क्या आप उसको मना नहीं करेंगे और बताएंगे नहीं कि यू वर रॉन्ग? क्या आप उसकी इजाजत देंगे? यू विल जज हिम। आप उनकी मजम्मत करेंगे जो झूठी तालीम देंगे। इसी को जज कहते हैं। फॉल्स टीचिंग जो है उसकी जज, आप उसको जज करते हैं आप, और अगर कोई गलती पर है तो उसकी आप क्या करते हैं? उसकी मजम्मत करते हैं। यू जज देम, और उन्हें आप मना करते हैं, क्योंकि आप अपनी जजमेंट से
कलाम की रूह से इस बात से वाकिफ हैं कि ये जो शख्स है ये गलती पर है। यहां पौलुस यही हमें बताने की कोशिश करता है कलाम के मुताबिक कि हमें मजम्मत करने की इजाजत है, लेकिन इससे पहले कि हम किसी का अखलाकी मुहासबा करें, पहले अपने आप को चेक करें। हमें तनकीद बराए तनकीद का जो उसूल है या जो तरीका है लोगों का, उस पर गौर नहीं करना, उससे परहेज करें। एक मसीही को यहां पर वो यहूदियों से बात कर रहा है, लेकिन इसका ताल्लुक जो है वो सीधा डायरेक्ट आज के चर्च के साथ, आज के मसीही के साथ वो बात करता है। हमें अपनी जजमेंट में दूसरों की बेहतरी के बारे सोचना चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं। और फिर अगर आप देखें आगे बढ़ते हुए तो यहां लिखा हुआ है इसी पहली आयत के दूसरे हिस्से में, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्जाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है। और फिर इसलिए कि तू जो इल्जाम लगाता है खुद वही काम करता है। इंसानी जिंदगी में इंसान जो है दूसरों को कहता है कि वो ये करता है, वो करता है। पौलुस यही समझाने की कोशिश करता है। और इस वक्त वो, मैंने पहले कहा था कि वो जिनके पास शरीयत है उनसे बात कर रहा है और उनको यह बताने की कोशिश कर रहा है। उसकी वजह क्या थी? मैंने पिछली स्टडी में आपको बताया था कि जितने भी जेंटाइल्स या गैर कौम में से लोग मसीहत में आ रहे थे, यहूदी उनसे मसावी सलूक नहीं करते थे। वो उनको कम दर्जे का मसीही समझते थे। जैसे कई ममालिक में मसीहियों को सेकंड ग्रेड सिटीजन कहा जाता है, इसी तरह वो सेकंड ग्रेड क्रिश्चियंस कहलाते थे। जो यहूदी हैं वो समझते थे कि हम जो यहूदियत से मसीहत में आए हैं पहला दर्जा रखते हैं, हमारा ये हक है क्योंकि मसीह जो है वो यहूदी था। और जितने दूसरे जो मसीहत में आए हैं वो सेकंड ग्रेड क्रिश्चियन हैं, सेकंड ग्रेड कॉन्वर्ट्स हैं और यहूदियों से वो इस वक्त महातब है। मैंने पहले कहा था अपने आप को तसव्वुर करें कि आप कुर्सी के मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठे हैं और पौलुस ऐसे फिंगर करके मुझे और आपको जो है वो ये सवालात और जवाबात जो है वो दे रहा है। पौलुस जो है यहां पर खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिस बात को वो बताना चाहता है या कहना चाहता है मेरे लिए और आपके लिए, वो ये है कि खुद वही काम करते हैं। हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की इदारत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। तसव्वुर करें, मैं आज की जो लिंगो है या जुबान है जिसको बड़ी जल्दी से आसानी से लोग समझते हैं, साइंसी जुबान में बताना चाहता हूं कि फर्ज करें आपके अंदर खुदा ने एक चिप या एसडी कार्ड जो है वो रखा है, जो हर लम्हे की ऑडियो और वीडियो जो रिकॉर्डिंग है वो हो रही है। उस एसडी कार्ड में, उस चिप में हर लम्हे की मेरी और आपकी जिंदगी की ऑडियो और वीडियो जो है वो बन रही है। और फिर क्या होगा? उस दिन, उस आखिरी अदालत के दिन खुदा उस एसडी कार्ड को चलाता है, प्ले करता है और मैं और आप सब कुछ देख रहे हैं और सुन रहे हैं। उस वक्त खुदा, गौर से सुने, उस वक्त खुदा ये नहीं कहेगा कि तूने ये किया, क्यों किया, नहीं। उस वक्त मेरे और आपके सर झुके होंगे, मैं और आप सुन रहे होंगे, वो बोल रहा होगा। मेरे अजीजों, उस दिन सारी फिल्म जो है वो चलेगी। इल्जाम लगाने वाला ये देखेगा, गौर करेगा और सुनेगा कि इल्जाम लगाने से पहले उसने अपना अखलाकी मुहासबा नहीं किया था। इसलिए जरूरी है कि जज करने से पहले गौर करें कि कहीं मैं भी वो ही फेल तो नहीं कर रहा, क्या मैं वो काम खुद तो नहीं कर रहा जिसके लिए दूसरे को मैं जज कर रहा हूं। यहां यही कलाम में मेरे अजीजों लिखा हुआ है। उस दिन हम सर झुकाए ये सुन रहे होंगे, लेकिन उस वक्त फिक्स करने का टाइम नहीं होगा। उस वक्त इस गलती को दुरुस्त करने का वक्त नहीं होगा, उसका वक्त आज है।
उसका वक्त आज है कि हम अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें। मेरे पास आज वक्त है, उस वक्त इसको ठीक करने का वक्त नहीं होगा। देयर वोंट बी टाइम टू फिक्स देन ब्रदर एंड सिस्टर्स, क्योंकि हमने जानबूझकर गैर म्यारी काम किया है। आपको याद है, इसलिए मैं कहता हूं कि स्टडी में शामिल रहे, सारे मैसेज सुने। अगर आपने नहीं सुने तो आप बाद में जाकर फेसबुक पर, यूट्यूब पर जाकर जो पहला चैप्टर है उसके 2 पार्ट हैं, जरूर सुने। वहां पर मैंने गैर म्यारी सिक्कों के बारे में आपको बताया था। ये वो सिक्का है जब मिंट में से निकलता है और टेस्ट होता है तो वो गैर म्यारी होता है, जिसे हम खोटा सिक्का भी कह सकते हैं, और वो इस्तेमाल में नहीं आता। हमने क्या किया कि हमने जानबूझकर इस जिंदगी में जानते हुए, इस किताब को मानते हुए, इस किताब को पढ़ते हुए भी हमने इसके मुताबिक अमल नहीं किया, और हम गैर म्यारी सिक्कों की मानत होंगे। और मेरे अजीजों, उस वक्त दुरुस्त करने का वक्त नहीं होगा। इसलिए इस पर आज गौर करें। गलत और सही का जो म्यार है उसके मुताबिक इस कलाम को पढ़ते हुए अमल करें। बाइबल का म्यार हमेशा एक रहा है। लिसन टू मी, बाइबल का म्यार हमेशा एक रहा है। खुदा का कलाम वक्त, मौसम और हालात से नहीं बदलता। ज़िनाकारी कल भी गुनाह था, आज भी गुनाह है। चोरी कल भी गुनाह था, आज भी गुनाह है। झूठी गवाही देना कल भी गुनाह था, आज भी है। क्या ये बदले हैं? और अगर ये बदले नहीं तो फिर किस तरह हम इस बात को सही तौर पर नहीं समझते कि इल्जाम लगाने से पहले हमें अपना मुहासबा करना जरूरी है। जो कल गुनाह था वो आज भी गुनाह है। मेरे अजीजों, खुदा ना बदलता है और ना उसकी बातें जो हैं वो बदलती हैं। इंसान अपने हालात के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक कलाम मुकद्दस की तालीम को एडजस्ट करने के लिए जवाब जो है ढूंढता है। ये इंसान है जो बाइबल की ट्रू डॉक्ट्रिन और टीचिंग को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। खुदा का कलाम जो अज़ल से है हमेशा ऐसा ही है, कभी भी नहीं बदलता। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लिबरल थियोलॉजियन जो हैं, आज के लिबरल जो टीचर्स हैं, वो इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे चर्चेस में गलत तालीम प्रीच की जाती है, और मासूम लोगों को, खुदा के मासूम लोगों को उन्होंने गलत तालीम दे देकर ऐसी सिचुएशन में डाल दी है कि वो लोग गुलामों की तरह ज़हनी गुलाम बन गए हैं। उनको इस बात की इजाजत ही नहीं कि वो खुद कलाम को पढ़े, सीखे और सवाल करें। उनको ज़हनी तौर पर मरीज बना दिए गए फॉल्स टीचिंग की वजह से। बहुत सारे लोग सही तालीम, ट्रू डॉक्ट्रिन सुनाने से डरते हैं कि कहीं चर्च के लोगों की तादाद ना कम हो जाए, कहीं मेरे बहन भाई ना मुझे छोड़ जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम की जो ट्रू डॉक्ट्रिन है उसको बयान करने से कभी ना पास आए, क्योंकि मैं और आप अगर दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं तो जरूरी है कि आर वी प्रीचिंग द ट्रू डॉक्ट्रिन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो शतीर वाली आयत का हवाला मैंने आपको अभी दिया है, उसका मतलब यही है कि जज करना आपका और मेरा इस तरह होना चाहिए कि हम दूसरे की सलाह करने का बाइस हो, उसकी सलाह करें, उसकी तरबियत करें, और ऐसी तदबीर करें कि अगर किसी से गलती हो गई है तो उसको माफी के साथ उसको इस तरह तैयारी में लाएं कि वो भी खुदावन के इस काम में, इस बशारत में दौड़े भागे और खुदावन का नाम जो है वो जलाल पाता रहे। आगे बढ़ते हैं। हमें जो नजर आ रहा है उसके मुताबिक हमें फैसला करना चाहिए। हमें जिस बात का पता नहीं उसके लिए हम फैसला ना करें। किसी भी तरह की अखलाकी जजमेंट जो है वो हम ना दें, क्योंकि वी डोंट नो ऑल। क्योंकि उस दिन याद रखें, लास्ट जजमेंट वाले दिन जो ज्यादा जजमेंट या कंडेम करते हैं उनकी अदालत जो है वो ज्यादा होगी। मेरा कहने का मतलब है, जो जज करते हैं, मैं और आप अगर जज करते हैं
تو خداवन उस दिन हमसे दुगना हिसाब मांगेगा, क्योंकि उसने मुझे और आपको ये कलाम दिया और समझाया कि इसके मुताबिक हम इसको प्रीच करें उसके पाक रूह की हिदायत से। और अगर हम इसमें किसी भी तरह और की मिलावट करते हैं तो मेरा और उन सारे खादमों का और पेस्टर्स का और लेमैन्स का, जो भी इसमें किसी भी सिचुएशन में किसी भी कैपेसिटी में खिदमत करते हैं, उनका ज्यादा हिसाब होगा मेरे अजीजों। सो बी केयरफुल व्हेन वी ट्राई टू जज अदर्स। गलत को गलत कहें। कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह सीधी सीधी खरी खरी बातें फक्की और फरीसियों के कहते थे, हां इसलिए कि उसमें कोई गुनाह नहीं, एंड ही कैन जज। लेकिन उसने मुझे और आपको कलाम मुकद्दस की इसको समझने की तौफीक दी है, एंड वी शुड जज टू। लेकिन हमें जज करने से पहले अपना जो अखलाकी मुहासबा है उस पर जरूर गौर करना चाहिए। हमारी जो जजमेंट है वो प्योर ऑनेस्टी पर होनी चाहिए और बहन भाई की तरबियत और बेहतरी के लिए होनी चाहिए। और फिर कोई भी एक्शन जब हम लेते हैं तो हम इस बात का ख्याल रखें कि हमारा वो एक्शन किसी की रूहानी जिंदगी को तबाही की तरफ ना ले जाए, बल्कि उसकी रूहानी तरक्की का बायस हो। वो तनकीद, वो मजम्मत रूहानी तरक्की का बायस होनी चाहिए। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। तीसरी आयत यहां पर लिखा है, ऐ इंसान तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है खुद वही काम करता है। दोबारा रिपीट करते हुए, क्या यह समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? अब सवाल यह है, अगर कोई बहन भाई किसी भी ऐसे फेल और काम में शामिल है जिसका हमें पता है कि वो सही नहीं, तो इससे पहले कि हम उनको जज करें, हमें अच्छी तरह उसकी छानबीन और तफ्तीश कर लेनी चाहिए। क्योंकि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर किसी से गलती हुई है तो हम उनकी बेहतरी की तदबीर करें और तनकीद बराए तनकीद से बाज आए। इंसान, ये जो आयत है इसके मुताबिक गलती पर गलती करता है। इंसान जो है वो गलती पर गलती करता है और इसीलिए खुदा जो है वो इस बात का मुंतजर है कि उसकी तौबा तक नौबत पहुंचे, और वो अभी तक ठहरा हुआ है। जॉनथन एडवर्ड्स का एक बड़ा ही मशहूर मैसेज है और उसका टाइटल यह है, सिनर्स इन द हैंड ऑफ एंग्री गॉड। मैंने उसे समराइज किया है, उसको मैंने उसी तरह कोड नहीं किया, लेकिन मैंने उसको समराइज किया है कि खुदा का इंसान के लिए सबसे ज्यादा प्यार करने वाला काम उसे तौबा की तरफ लाना है, कोड अनकोड। मतलब इंसान को आजिज होना चाहिए। गौर से सुने, जब इंसान सुबह उठता है तो उसको एक और दिन दिया गया है। मैं और आप जब सुबह उठते हैं तो बेसिकली हमें एक दिन खुदा ने और दिया है। खुदा ने हमें रोशनी देखने को दी। वो मेरे और आपके सारे कामों को जानता है। खुदा हमें मौका दे रहा है कि हम उसकी तरफ तवज्जो करें, और वो शख्स को देखना चाहता है जिसको खुदा के कलाम की जो बातें हैं, शरीयत जो है उसे दी गई है, कि क्या वो अब भी उसको समझता है कि नहीं, कि क्यों उसे एक और दिन देखने को दिया गया। खुदा जब हमें सुबह उठाता है तो हम अपनी कुव्वत से नहीं उठे, हमें जो घड़ी का अलार्म है उसने नहीं जगाया, बल्कि हमें उसके पाक रूह ने जगाया है और फजल बख्शा है, और हमें एक और दिन दिया कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और उसकी तरफ रजू लाएं। और यहां पर इसीलिए लिखा है, चौथी आयत में अगर आप देखें तो लिखा है, उसका दूसरा हिस्सा है, चौथी आयत का, या तो उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है। खुदा हमें सुबह उठाता है कि हम गुजरे दिन पर गौर करें, ताकि हम इस नए दिन में उसकी जो बरकत और बख्शिश है
उस पर निगाह रखें, दूसरों को हकारत की निगाह से ना देखें। याद रखें, मैंने शुरू में कहा था कि वो जो यहूदी हैं उनसे बात कर रहा है, और उसी बैकग्राउंड में उनसे बात करते हुए आज मेरे और आपके लिए भी पौलुस ये लिखता है कि हम दूसरों को मसावी दर्जा दें। मतलब यहां पर मेरे और आपके लिए किस तरह ये एप्लीकेशन है कि अगर मुझे खुदावन ने कलाम की समझ दी है तो मेरा वो भाई और बहन, मैं से मेरी मुराद जॉर्ज वहीद नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि अगर किसी भी भाई और बहन को खुदा ने पाक रूह की इंटरप्रिटेशन, तशरीह या इसको समझने के लिए खुदा ने उसे ब्लेसिंग दी है, तो वो बहन भाई जो किसी तरह उस लेवल पर नहीं, हम उन्हें किसी भी तरह हकारत अमेज रवैये के साथ उनके साथ इस तरह का सलूक ना करें, बल्कि उनके लिए दुआ करें और उनकी मदद करें, बजाय इसके कि हम उनकी मजम्मत करें, बजाय इसके कि हम उनको जज करें। हमें उनकी मदद करके उनको भी अगले दर्जे पर लेके आना चाहिए। यह खुदा चाहता है मुझसे और आपसे, और इसीलिए वो कुछ को तो इसलिए एक और दिन देता है कि वो अपने ईमान से दूसरों के ईमान को बढ़ाएं, और कुछ को वो एक दिन और देता है कि वो जो जिंदगी बसर कर रहे हैं उससे तौबा करें और वापस आ जाएं, क्योंकि वो ठहरा हुआ है। खुदा इंतजार करता है ताकि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, और जब वक्त आएगा तो फिर मेरे अजीजों वो अदालत करेगा, लेकिन उसके अपने टाइम टेबल पर। अगर आप कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब में से देखें, मैंने ये हवाला आपके लिए लिखा है, पैदाइश की किताब में जो 15वां बाप है, अगर आप उसको देखें तो वहां पर कुछ यूं लिखा है उसकी 16वीं आयत में। पैदाइश की किताब के 15वें बाप की 16वीं आयत, यहां क्या हो रहा था? यहां दरअसल खुदा इब्राहिम से बात करते हुए कह रहा है, मैं इसको 14वीं आयत में से पढ़ता हूं, लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे। मिस्रियों की बात कर रहे हैं, और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर निकल आएंगे, और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और नहायत पीरी में दफन होगा। अब गौर सुने 16वीं आयत, और वो चौथी पुश्त में यहां लौट आएंगे, क्योंकि अमूरियों के गुनाह अभी तक पूरे नहीं हुए। मैंने और आपने इसी दुनिया में रहना है। खुदा अभी सब्र किए हुए है, और खुदा चाहता है कि दूसरे जो हैं वो तौबा करें। इसलिए वो कहता है कि जो इस्राएली है, ये जो तेरी कौम है, ये 400 साल तक मिस्र में रहेगी, क्योंकि अमूरियों के गुनाह अभी बाकी हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? मैंने और आपने, बेशक हमारे पास शरीयत है, कलाम मुकद्दस मेरा मतलब है, यीशु है, सब कुछ, लेकिन इस दुनिया में उस वक्त तक रहना है जब तक जो बाकी चीजें हैं वो खुदा के प्लान के मुताबिक मुकम्मल नहीं होती। लिहाजा इसका कोई पता नहीं कब वो वक्त आएगा। इस दुनिया में रहते हुए हर दिन खुदा मुझे और आपको मौका ये दे रहा है कि अभी वक्त है। ऐ इल्जाम लगाने वाले, अभी वक्त है। ऐ जज करने वाले, अभी वक्त है। इसलिए खुदा ने इब्राहिम को कहा कि अभी मूरियों के गुनाह बाकी हैं, लिहाजा वो सारे उस ट्रायल और पीरियड्स में से गुजरे, और मैं और आप भी इसी तरह इसमें से गुजरते हैं, क्योंकि खुदा जो है हमल किए हुए है। यहां रोमियो के खत के इस दूसरे बाब की ये जो आयत है, इसका यही मतलब है कि खुदा जो है वो अभी तक इंतजार कर रहा है। खुदा चाहता है कि सबकी तौबा तक जो नौबत है मेरे अजीजों वो पहुंचे तहम्मुल के साथ। और फिर आगे लिखा हुआ, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कमा रहा है। लिहाजा मुझे और आपको अब गौर करना है कि क्या मैं और आप दूसरों को जज करने से पहले ये अच्छी तरह अंदाजा कर लें कि क्या मैं और आप वही तो नहीं कर रहे। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग नारे लगाते हैं सियासतदानों के खिलाफ, पादरियों के खिलाफ, दूसरे लोगों के खिलाफ, किसी को चोर कहा जाता है, किसी को और तरह के इल्जामात जो हैं
उनसे बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, लोग नारे लगाते हैं और लोग अपने जो अखलाकी मेयार है उसके मुताबिक जज करते हैं। लोग अपना जो उनका अखलाकी मेयार उसके मुताबिक जज करते हैं। तो क्या जज करने वालों ने कभी ये सोचा है कि वो जो मेयार उनका है वो कोई पैमाना नहीं, बल्कि पैमाना जो है जज करने का वो ये खुदा का जिंदा कलाम है। इस पर हमें नजर करनी चाहिए और इसके मुताबिक जज करना चाहिए। आयत 6 से 11। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा पैरा है इसमें यूं लिखा हुआ है, मैं छठी आयत जो है वो पढ़ता हूं। वो हर एक को उसके कामों के मुवाफिक बदला देगा, जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालब होते हैं उनको हमेशा की जिंदगी देगा। मगर जो तफरका अंगेज और हक के ना मानने वाले हैं बल्कि नाराजगी के मानने वाले हैं उन पर गजब और कहर होगा। हम जो 11वीं आयत है वहां तक चलेंगे। छठी आयत में यहां पर लिखा है कि हर एक को उसके कामों के मुवाफिक बदला मिलेगा। हर एक उसके कामों के मुवाफिक बदला मिलेगा। इस आपने देखा कि किस तरह पहले वो जो गैर अक़वाम थी उनको एड्रेस करता है पहले बाप में। अब इस चैप्टर में दूसरे में वो शरीयत वालों को एड्रेस कर रहा है। पहले चैप्टर में बगैर शरीयत के जो थे उनको एड्रेस करता, अब शरीयत वालों को एड्रेस कर रहा है। अब यहां वो यहूदियों को एड्रेस कर रहा है, मुझे और आपको हैज़ मसीही वो एड्रेस कर रहा है और कहता है कि हर एक को उसके कामों के मुवाफिक बदला जो है मिलेगा। हर एक को, मतलब ये हुआ, आसिस सप्रोल लिखते हैं कि हम चाहे कितने भी ग्रुप्स के मेंबर हों, हमारा चर्च कितना बड़ा हो, बाइबल स्टडी के कितने ग्रुप्स हों या मेंबर्स हों, हमें एक चीज का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। इसमें हम चर्च कितनी दफा आते हैं, हम हदिया देते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, मेरे अजीजों, हमें जिस चीज को मुसलसल अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए वो रोजे आखिर है। आखिरी अदालत के दिन मैं और आप मेरे अजीजों वहां अकेले खड़े होंगे। वहां मेरे वालिद की रास्तबाजी मुझे नहीं बचाएगी, वहां मेरी मां की रास्तबाजी मुझे नहीं बचाएगी, ना मेरे भाई, ना मेरे बहन की, ना मेरे चर्च की, ना किसी और की रास्तबाजी मुझे बचाएगी, बल्कि उस दिन मैं अकेला खुदा के तख्त के सामने अपनी जान का जवाब दूंगा। मैं और आप उस दिन अकेले वहां खड़े होंगे मेरे अजीजों और अपना हिसाब देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 11वीं आयत के रेफरेंस में मैंने बात की है कि खुदा के यहां किसी की तरफदारी नहीं। जब मैं इसे पढ़ रहा था और मैं दुआ भी कर रहा था तो मैंने 2-3 दफा इसको गौर से पढ़ा, बार बार पढ़ा, और मैं समझता हूं कि यहां पर पालूस जो है वो बड़े ही एक बेहतरीन अंदाज से अपने बारे में, दूसरे यहूदी के बारे में और मेरे और आपके बारे में इसको बयान करता है। गौर से सुने मैं क्या कहने वाला हूं। यहां पर 11वीं आयत में मैंने इसको पहले रेफरेंस दिया ऊपर उसके साथ अटैच करने के लिए। यहां लिखा है क्योंकि खुदा के यहां किसी की तरफदारी नहीं, खुदा किसी की फेवर नहीं करता। गौर से सुने, खुदा जो है वो किसी की तरफदारी नहीं करता। खुदा किसी का तरफदार नहीं। पालूस मुमकिन है इस तरह बयान कर रहा है और वो अपने आप को सामने रखकर कह रहा है और वो शरीयत वालों को समझाने की कोशिश करता है। हो सकता है उसका ताल्लुक, मतलब एक इन जनरल पालूस बात कर रहा है कि हो सकता है एक शख्स का ताल्लुक एक अच्छे खानदान से हो, उसकी मां ने उसकी बड़ी अच्छी तरबियत की हो, वो उसका ताल्लुक एक बड़े अजीम खानदान से हो। जैसे आजकल लोग बड़े फख्र से कहते हैं मैं गिल हां, मैं पट्टी हां, और पता नहीं चीमा और क्या क्या जो भी वो है, वो उस पर प्राउड है, करते हैं। ठीक है, यहां पालूस रूहानी मानों में बात कर रहा है कि चाहे उसका ताल्लुक अजीम खानदान से हो, वो सही वक्त में सही जगह पैदा हो, मां ने अच्छी तरबियत की हो, कोई ऐसा काम ना उसने किया हो जो दूसरे करते हैं,
वो एक नेक और अच्छा शख्स है, उसने अच्छी मजहबी तालीम हासिल की है, वो यहूदी है और शरीयत की तामील करता है। उन सब के लिए पालूस एक बड़ी अहम बात जो है वो कहना चाहता है, जब वो ये कहता है कि खुदा के यहां किसी की तरफदारी नहीं। आपको याद है खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदी उलमा को क्या जवाब दिया जब उन्होंने सवाल किया? और हम देखते हैं कि मत्ती की सॉरी मैंने हवाला नहीं लिखा, लेकिन यहूदियों को खुदावंद यीशु मसीह जवाब देते हैं कि तुम मेरे बारे में जानते हो, कलाम मुकद्दस में मेरे बारे में लिखा है, और तुम जानते हुए भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं कौन हूं, कहीं बच ना जाओ। उसकी वजह क्या है कि शरीयत वालों से बात की गई है, जो बगैर शरीयत के थे उनके पास उज़र था, गो खुदा उस उज़र को नहीं मानता। लेकिन अब शरीयत वालों से बात कर रहा है कि हो सकता है तू यहूदी हो, तेरे पास शरीयत भी है, तू अच्छे खानदान से भी ताल्लुक रखता है, लेकिन तेरी जो अदालत है उसमें खुदा तेरी तरफदारी नहीं करेगा। उसकी वजह क्या थी? उसकी एक वजह मेरे अजीजों ये थी कि यहूदी जमाना कदीम में और आज भी ये तालीम देते हैं कि खुदा जो है वो यहूदियों की अदालत जो है और तरह करेगा और गैर यहूदियों की और तरह करेगा। खुदा के यहां फिर इसका मतलब है दोहरा मेयार है, ऐसी बात नहीं है। खुदा के यहां एक ही मेयार है मेरे अजीजों। गौर करें, हमारा ताल्लुक चाहे किसी अच्छे खानदान से हो, हमारे पास चाहे जितनी मर्जी तालीम हो, डिग्रियां हो, रुतबा हो, दौलत हो, हम हर इतवार चर्च जाते हो, हमारे पास कलाम मुकद्दस है, बाइबल के हम स्टूडेंट हैं और इस पर ईमान रखते हैं, लेकिन ये सब कुछ नाकाफी है अगर, गौर से सुने, अगर बाइबल पर ईमान रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हम बाइबल के पीछे मौजूद शख्स के बारे में नहीं जानते। दोबारा कहता हूं, बाइबल को पढ़ना और उसको जानना उस वक्त तक बेमानी है जब तक हम बाइबल के पीछे जो शख्स है उससे हमारे जाती जो रिलेशनशिप है वो नहीं है। मेरा मतलब यीशु मसीह से है। अगर हम खुदा को पीछे छोड़ दें और उसके कवानीन पर अमल करें, ला को, शरीयत को मानते हैं, तो क्या हम रास्तबाज ठहरेंगे? नहीं, क्योंकि खुदा पर ईमान लाना और यीशु की मार्फत ही हमें जो निजात है वो मिलेगी मेरे अजीजों। वो हमसे मुखातब होते हुए हम पर वाज़ेह करता है कि वो अपने कहर और फजल और इंसाफ के मुताबिक जो वो देखता है और जो बेहतर समझता है उसके मुताबिक इंसाफ करता है, और बगैर तरफदारी के, बगैर किसी की जो भी हैसियत है उसके उसको मद्देनजर रखते हुए नहीं, बल्कि उसके ईमान और उसकी वाक को, उसका जो रिलेशन है उसके साथ, उसको मद्देनजर रखते हुए वो उसे जज करेगा। और आयत 11 से 16 तक मेरे अजीजों, रोमियो के, अब हम इसके आखिरी जो पैराग्राफ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। गौर से सुने, यहां पर लिखा है 12वीं आयत में, इसलिए कि जिन्होंने बगैर शरीयत पाए गुनाह किया वो बगैर शरीयत के हलाक भी होंगे, और जिन्होंने शरीयत के मतहत होकर गुनाह किया उनकी सजा शरीयत के मुआफिक होगी, क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं होते, बल्कि शरीयत पर अमल करने वाला रास्तबाज ठहराए जाएंगे। इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत है। किसी ने कहा है ऑल विद लॉ प्लस ऑल विदाउट लॉ, सारे जिनके पास शरीयत है प्लस जमा वो सारे जो शरीयत के बगैर हैं इक्वल
है यूनिवर्सल सिन के। और उर्दू में अगर इसकी मैं आसान अल्फाज में कहूं तो वो इस तरह है कि शरीयत वाला और शरीयत के बगैर दोनों खुदा के सामने मुजरम हैं, क्योंकि शरीयत वाले शरीयत रखने के बावजूद गुनाह करते हैं और वो उनको मुजरम ठहराता है। और शरीयत अच्छे और बेशरीयत अच्छे काम करते हैं, लेकिन उनका भी मसला है, क्योंकि वो अच्छे कामों की वजह से रासबाज नहीं ठहराए जाएंगे। सिर्फ खुदा पर ईमान लाने से, यस्सु की मार्फत ही वो बचते हैं। लिहाजा दोनों ही खुदा के सामने मुजरम है। शरीयत के मुताबिक और उस पर अमल करना जरूरी है, मैं शरीयत की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप एक यहूदी सारी शरीयत के जो हकाम उनको मानता है और एक से उसकी रूहगर्दानी होती है, ये करता है, तो सारी मेहनत उसकी बेफायदा हुई। लिहाजा फिर अब इसका हल क्या हुआ? क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि कोई शख्स सारे हुक्मों को कायम रखे, और इसके लिए जरूरी है कि उसकी रहाई जो है वो खुदा के फजल से होगी, क्योंकि रास्तबाजी के सारे काम इंसान नहीं कर सकता, उससे गुनाह होगा। और अगर गुनाह करेगा तो शरीयत का जो मेयार या जो हुक्म है उसके मुताबिक वो फिर नए सिरे से दोबारा शुरू करेगा, और ये सिलसिला जारी रहता है। इसलिए इंसान को नजात के लिए यस्सु के खून की जरूरत है। मेरे अजीजों, इल्जाम लगाने से पहले अपने आप को यस्सु के खून से धो लें। यहां पर जब हम जजमेंट की बात कर रहे हैं मेरे अजीजों, तो जो शरीयत के बगैर हैं उनके अंदर डीएनए में खुदा ने एक सिफ्त रखी है हर इंसान के। मैं शरीयत वालों की नहीं बात कर रहा, मैं बगैर शरीयत के जो उनकी बात कर रहा। उनके अंदर भी खुदा ने उसी तरह, क्योंकि हम सब आदम और हवा से आए हैं, वही सिफ्त है जो खुदा की अपनी है कि गलत और सही की तमीज की जो सिफ्त है। लिहाजा शरीयत के बगैर भी उनके अंदर ये सिफ्त है कि वो ये जांच सकते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है। और लेकिन अगर इसके बावजूद वो गलत काम करते हैं तो खुदा उन्हें मुजरम ठहराता है। पालूस जो है वो यही कह रहा है कि शरीयत के बगैर यूनानी या कोई भी अपने आप को मासूम साबित नहीं कर सकता, क्योंकि उसके डीएनए में खुदा ने अपने आप को मुख्तलिफ तरह से जाहिर किया है। लेकिन जो इंसाफ का तराजू है या मेयार है वो यहूदी के लिए और यूनानी के लिए एक ही है। और उसकी वजह यही थी जो मैंने पहले कही कि यहूदी उलमा समझते थे कि यहूदियों का इंसाफ और तरह होगा और यूनानियों का और तरह। मतलब जो यहूदी माइल मसीही है उनका और तरह, और मैं और आप जो गैर अक़वाम से मसीहत में आए हैं हमारे लिए कोई और मेयार है। लेकिन मेरे अजीजों, ये उनके अपने पैमाने हैं, कलाम का पैमाना एक ही है। जजमेंट जो है वो कलाम के मुताबिक है। आखिर में 2-3 मिनट मैं लेता हूं, फिर से मैं रैप करता हूं। वो ये है 14वीं आयत से 16वीं आयत। यहां पर यूं लिखा हुआ है, इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत है। चनाचा वो शरीयत की बातें 15वीं आयत अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती हैं, और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है, और उनके बाहमी ख्यालात या तो उन पर इल्जाम लगाते हैं या उनको माजूर रखते हैं। गौर से सुने, दिल पर शरीयत लिखनी, रसूल का ये लिखने का मतलब ये है कि गैर अक़वाम के पास मूसा की शरीयत नहीं है, ठीक है, लेकिन खुदा ने उनके दिलों में अपने आप को रखा है, और कोई ऐसा नहीं जो उसकी मौजूदगी, जो कायनात उसने तख्लीक की है, उसके जरिया से मालूम ना कर सके। उसने उन
पर अपने आप को अय्यां किया है। गैर अक़वाम के पास रिटन लॉ या शरीयत नहीं थी। गौर से सुने, जो गैर अक़वाम है आज भी उनके पास रिटन या लिखी हुई शरीयत तो नहीं। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने खुदा का जो लफ्ज है उसको भी ना सुना हो, लेकिन याद रखें उनका जो ज़मीर है वो उनके लिए कुतुब नुमा है, कंपस की तरह है, क्योंकि उनका ज़मीर उनको मलामत करता है जब वो गलत काम करते हैं। लिहाजा उनके पास कोई भी उज़र नहीं है। और क्लार्क के मुताबिक हमें खुदा तमाम कौमों को इस कलाम के इस्तेमाल और इसके सही और गलत इस्तेमाल के मुताबिक जो है इंसाफ की जो बात है वो करता है। और गौर से सुने, गो उनके पास रिटन लॉ नहीं और दूसरों के पास पत्थर की तख्तियों पर रिटन लॉ है, लेकिन दोनों का इंसाफ जो है खुदा जो है अपने म्यार और अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक करेगा। और 16वीं आयत के मुताबिक यहूदी, जैसा कि मैंने कहा, ये तालीम देते थे, उसके बारे में पालूस लिखता है कि अदालत वाले दिन, यहां पर लिखा है 16वीं आयत में, जिस रोज खुदा मेरी खुशखबरी के मुताबिक यीशु मसीह की मार्फत आदमियों की पोशीदा बातों का इंसाफ करेगा। यहूदी ये समझते हैं, उनके उलमा यही तालीम देते हैं और आज भी, कि जो इंसाफ है, जो अदालत का काम है, वो सिर्फ बाप के हाथ में है। इवन के जो मसीहा है, मसीह उसके लिए उसके हाथ में भी नहीं। लेकिन हमें पता है, कलाम में लिखा है कि बाप ने सारा इख्तियार जो है इंक्लूडिंग द जजमेंट वो भी बेटे के हाथ में दे दिया है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं और आप जिंदा कलाम अपने हाथों में रखते इसको पढ़ते हैं। पता क्या, मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूं, आप किसी के घर जाएं, कभी कभी आप उन्हें कहें बाइबल निकालें तो वो बाइबल को ढूंढना शुरू कर देते हैं, ये ना कि कहां पे बाइबल पड़ी हुई है। कलाम मुकद्दस जो है वो हमें हमारे लिए पढ़ने के लिए है, ना कि इसको हम सजा के रखें। इसको पढ़ें, इट्स गुड। हमने आज जो सीखा है मेरे अजीजों, वो ये है कि खुदावन जो है वो हमें मौका देता है कि किसी को जज करने से पहले हम अपना मुहासबा करें। और जजमेंट जो है वो मस्ट है। खुदा ने कहीं नहीं कहा कि हम किसी को जज ना करें। और वो हमें सुबह इसलिए उठाता है कि हम अपने दिन पर गौर करें। और ज़बूर नवीस इसीलिए कहता है कि वो मुझे अपने दिन गिनना सिखा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जब तक हम जिंदा हैं एक एक दिन के बारे में गौर करें और शाम को गौर करें कि वो दिन मैंने किस तरह बसर किया है। खुदा हमें मौका दे रहा है मेरे अजीजों, क्योंकि हमने इस दुनिया में रहना है जब तक वो सारे काम और सारी बातें मुकम्मल नहीं होती। जिस तरह के खुदा ने इब्राहिम को कहा कि वो वहां 400 बरस तक रहेंगे, और वो रहे। मैंने और आपने इस दुनिया में रहना है और इसी दुनिया में हम उस वक्त तक सब कुछ अपनी आंखों को देखेंगे, इस तजर्बे में से गुजरेंगे। लिहाजा मेरे और आपके लिए आज की स्टडी में रिकैप क्या है। नंबर 1, आपको जज करने की इजाजत है। दूसरों की जो अखलाकी बेहतरी है उसको उसमें हिस्सा लें, लेकिन इससे पहले कि हम दूसरे पर कोई इल्जाम लगाएं, हम पहले अपना जो अखलाकी मुहासबा है वो करें। और अगर कोई ये कहता है कि वी शुड नॉट जज अदर्स, उसको कलाम मुकद्दस की सही तालीम जो है वो नहीं है। उसकी मदद करें, उसको समझाएं कि खुदावन का कलाम हमें इस बात की इजाजत देता है, लेकिन उसने बाउंड्रीज रखी हैं। उसने मेरे और आपके लिए अखलाकियात का म्यार रखा है। काश खुदा मुझे और आपको तौफीक दे कि हम इस म्यार के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। आए अपने सरों को झुकाएं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज के जिंदा कलाम के लिए। आए खुदावन, पालूस रसूल तेरा बंदा जिसको तूने रिसालत बख्शी, रोमियो की स्टडी के दौरान हमने सीखा कि खुदावन किस तरह वो दोनों को कंडेम करता है, शरीयत वालों को भी
और बगैर शरीयत के जो थे उनको भी। और खुदावन पाक रूह की हदायत से उसने मेरे लिए, आज की चर्च के लिए, तेरे लोगों के लिए खुदावन इस बात को लिख दिया कि हम जज करने से पहले अपना मुहासबा करें और हमारी जजमेंट नेकी, पाकीज़गी और दूसरों की बेहतरी के लिए होनी चाहिए। क्योंकि खुदावन अगर हम ऐसा नहीं करते तो उस दिन जब तू हमें जज करेगा तो खुदावन हमारे पास अपने बिगड़े काम दुरुस्त करने का वक्त नहीं होगा। काश हम आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। आए खुदावन तू हमें ऐसा ही करने की तौफीक दे। आमीन। खुदावन का बड़ा शुक्र हो, उसकी मेहरबानी से हमने आज का ये जो सबक है इसको देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावन के बड़े फजल से, उसकी मर्जी से खुदावन ने चाहा तो अगली दफा हम ये जो दूसरा चैप्टर है रोमियो की कलीसिया का, इसको मुकम्मल करेंगे। बड़ी ही दिलचस्प स्टडी है और आपकी जो फीडबैक आ रही है, जितने बहन भाई इसको सुन रहे हैं और दूसरों से शेयर कर रहे हैं, आप सबका शुक्रिया। आपने पता क्या किया है, जो बात अभी मैंने कही है कि हमें दूसरों की रूहानी बेहतरी के लिए कोशिश रहना चाहिए। जब हम खुदा के कलाम की ट्रू और सच्ची डॉक्ट्रिन जो है उसको दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो मैं और आप अपनी जो खिदमत है उसको पूरा करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको इसलिए चुना है। आप जितने भी इस वक्त सुन रहे हैं, आप अचानक हादसाती तौर पर आज यहां मेरी बातें नहीं सुन रहे जो मैं कह रहा हूं, कलाम की बातें मेरा मतलब, बल्कि खुदा के प्लान से आप ये सुन रहे हैं। खुदा ने पहले से लिख दिया था कि अगस्त की 21 तारीख को 2022 को आप खुदावन के कलाम को लाइव देखेंगे। इट्स हिज प्लान। गौर करें कि मुझे और आपको उसने क्यों जिंदा रखा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जा चुके हैं, मैं और आप क्यों जिंदा हैं। थिंक अबाउट दिस, इस पर गौर करें। काश खुदावन मुझे और आपको इस स्टडी के वसीला से और आने वाले सुबह के वसीला से बहुत बरकत दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।